Now let us start the second chapter of Europe Moments and the Adventure of Toto. This is the chapter about Toto is the name of a monkey, right? Now before starting the chapter, I would like to tell you the theme of the story that you have to write in your notebook that I will send you by WhatsApp. The author Ruskin Bond is a well-known English author. He had lived his life in nature's land. Lab means Gozi. Here in this story, he has tried to explain that we must love animals. A monkey can be kept as a pet if it is taught. In a nutshell, we must love nature and its products. कहने का मतलब यह है कि हमें जानवरों को प्यार करना चाहिए और जानवरों में बंदर जो उत्पाती किस्म के होते हैं, बंदर एक उत्पाती जानवर कहलाता है. सो वी कैन ऑल्सो कीप मंकी एज ए पेट ऑल्सो, बट इफ इट इज टॉट. नाउ दिस स्टोरी इज अबाउट दैट एनिमल टोटो which had been kept as a pet by the author Ruskin Bond. Now moving on to the story on page number 7. Have you ever had a baby monkey as a pet? Toto is a baby monkey. Let's find out whether he is mischievous or docile. Docile means विनम्र, ठीक है, और mischievous means उत्पाती. वो कैसा था? प्यारा था, ज्यादा उत्पात न जाने वाला था, या सिंपल सा था. Grandfather bought Toto from a Tonga driver for the sum of 5 rupees. Grandfather means Ruskin Bond author जो है स्टोरी के उनके दादा. The Tonga driver used to keep the little red monkey tied to a feeding trough, and the monkey looked so out of place there that grandfather decided he would add the little fellow to his private zoo. ऑथर के जो ग्रैंडफादर थे उन्होंने टोटो को एक टोंगा ड्राइवर से 5 रुपए में खरीदा था. अब आप अचंभित हो रहे हो कि 5 रुपए में, उस जमाने में 5 रुपए में उसकी कीमत थी. The Tonga driver used to keep the little red monkey tied in a feeding trough, and the monkey looked so out of place there that grandfather decided to add the little fellow to his zoo. तो इस प्राइवेट, उस समय प्राइवेट जू में जो है घर के अंदर जू हुआ करते थे, तो उन्होंने बहुत सारे जानवर रखे थे, तो उस टोटो को वो रखना चाहते. टोटो was a pretty monkey. His bright eyes sparkled with mischief beneath deep-set eyebrows, and his teeth, which were a pearly white, were very often displayed in a smile that frightened the life out of elderly Anglo-Indian ladies. The meaning of sparkle means here shone brightly. beneath का मतलब below. जो टोटो जब बहुत सुंदर बंदर था, pretty means beautiful, उसकी जो आंखें इस तरीके से चमकती थी, which is beneath deep-set eyebrows, and his teeth, which were a pearly white, मोतियों की तरफ से दांत थे, were very often displayed in a smile that frightened the life out of elderly Anglo-Indian ladies. जिस तरह भी देखता था तो वो ऐसे खूबसूरती से देखता था कि कोई अगर गुस्से में भी हो तो वो देखकर खुश हो जाएगा. But his hands looked dried up as though they had been pickled in the sun for many years. लेकिन उसके जो हाथ थे वो सूखे हुए थे. तो उसका मतलब ये था कि dried up picked sun for many years, जैसे कि धूप में बहुत दिनों तक उसके हाथ थे. Yet his fingers were quick and big, and his tail, while adding to these good looks, उसकी पूंछ जो थी बिल्कुल दूर तरीके थी. It means the author has tried to explain the characteristic, the features of the monkey in this paragraph. सेकंड पैराग्राफ में उस मंकी टोटो के बारे में वो कैसा दिखता था, कैसा बिहेव करता था, that he has tried to explain us. Grandfather believed a tail would add use into it. Grandfather believed a tail would add to anyone's good looks. Also served as a third hand. ग्रैंडफादर का मानना था कि जो पूंछ होती है जानवर की वो उसके लुक्स में खूबसूरती बढ़ाती है, चार चांद लगाती है. Also served as a third hand, और वो तीसरे हाथ का भी काम करती है. He could use it as a hand from a branch, and it was capable of scooping up any delicacy that might be out of reach of his hands. वह उसको एक ब्रांच शाखा से मतलब अपनी पूंछ, बंदर जहाँ आपने देखा भी होगा कि बंदर जो पूंछों से कलाबाजियां करते हैं, तो वो उसको भी यूज कर सकता था. He was capable of scooping up any delicacy that might be out of reach
grandmother always first when grandfather brought home something for her animal. तो grandfather है तो grandmother भी होगी, जाहिर सी बात है। तो grandmother हमेशा गुस्सा हो जाती थी। फर्स्ट मतलब showing annoyance, अपने गुस्से को दर्शाने को इंग्लिश में फर्स्ट कहते हैं। It means showed annoyance. So it was decided that Toto's presence should be kept a secret from her until she was in a particularly good mood. Grandfather and I put him away in a little closet opening into my bedroom wall, where he was tied securely, or so we thought, to a peg fastened into the wall. तो ऑथर ने डिसाइड किया, ग्रैंडमदर बता रहा है कहानी में कि ग्रैंडमदर अक्सर गुस्सा हो जाती थी जब ग्रैंडफादर कोई ना कोई नया चिड़िया और नया एनिमल ऑथर के घर में बहुत बड़ा घर था उसका और उसमें बहुत सारे जानवर रखे गए थे। तो वो लोग डिसाइड करते हैं कौन, बोथ द ग्रैंडफादर एंड द ऑथर रस्किन बॉन्ड, बोथ दे डिसाइडेड दैट दे आर नॉट गोइंग टू टेल द दिस टू अबाउट दिस टोटो मंकी। उस मंकी के बारे में दादी मां को नहीं बताना, किसी दिन मूड खुश होगा तो बता देंगे, क्या करना है। A few hours later when grandmother and I came back to release Toto, उन्होंने क्या किया, उस टोटो को जो है रस्किन बॉन्ड के ऑथर के कमरे में हमारी थी, उसका हिस्सा बाहर निकल होता था, वहां पर उसने उसको बांध दिया। A few hours later when grandmother and I came back to release Toto, we found that the walls which had been covered with some ornamental paper chosen by grandfather now stood out it as a naked brick and plaster. कुछ घंटे बाद वो लौट के आते हैं तो देखते हैं ग्रैंडफादर क्या देखते हैं कि जिस पेपर से उन्होंने ढका था इसको टोटो को, अब जो है पूरी तरीके से बंदर की जाति उत्पादन होती है, आपको पता है, फेंक फाड़ दिया उसमें सारा। द टैग इन द वॉल हैड बीन wrenched from its socket, wrench means pulled, अब उस सॉकेट से इसको खींच के उसने, जिस रस्सी से उन्होंने बंदर को बांधा था उसको खींच के उसने वो फेंक दिया। एंड माय स्कूल ब्लेजर व्हिच हैड बीन हैंगिंग देयर, जो मेरे स्कूल का ब्लेजर था, द टैग इन द वॉल हैड बीन wrenched from its and my school blazer which had been hanging there was in shreds, उसको टुकड़े टुकड़े से बंदर ने, इसने टोटो ने टुकड़े टुकड़े कर दिए। आई वंडर व्हाट ग्रैंडमदर वुड से, अब मुझे डर लग रहा था कि दादी माँ को पता लगेगा तो दादी माँ मेरे को क्या कहने वाली, बहुत पिटाई करने वाली। बट ग्रैंडफादर डिडंट वरी, तो लेकिन दादाजी को चिंता नहीं, ही सीम्ड प्लीज्ड विद टोटो's परफॉर्मेंस, वो टोटो के परफॉर्मेंस से बहुत खुश हो रहे थे। ही इज क्लेवर सेड ग्रैंडफादर, गिवन टाइम, ग्रैंडफादर बोलते थे बहुत चालाक है, गिवन टाइम आई एम श्योर ही कुड हैव टाइड द torn pieces of the blazer into a rope and made his escape from the window। अब चूंकि उन्होंने उस बंदर ने उस कोट को फाड़ा था तो ग्रैंडफादर के क्या जवाब था, भाई तुम जानते हो बहुत चालाक है, मैं जानता हूं कि अगर उसको मौका दिया जाए, उसको सिखाया जाए तो आपके फाड़े हुए कोट को रस्सी बना के खिड़की से भाग जाएगा। Means he was seeing some positive sense in that Toto. His presence in the house is still a secret. Toto was now transferred into a big cage in the servants' quarter. अभी तक ये एक सीक्रेट था, गुप्त बात थी, सिर्फ किसको पता थी, दो लोगों को, ग्रैंडफादर और ऑथर रस्किन बॉन्ड। Toto was now transferred to a big cage in the servants' quarter where a number of grandfather's pets lived very sociably together. A tortoise, a pair of rabbits, a tame squirrel, for a while my pet goat. अब उसको एक बड़ी जगह पर ले जाएंगे, बड़ी जगह में, जहाँ पर और कौन कौन थे, टॉर्टोइस था मतलब कछुआ, पेयर ऑफ रैबिट्स दो जुड़ा खरगोश, ए टेम मतलब पालतू स्क्वायरल गिलहरी थी, फॉर अ व्हाइल और मेरी एक बकरी भी। बट द मंकी वुड नॉट अलाउ एनी ऑफ हिज कंपेनियंस टू स्लीप एट नाइट, वो बंदर वहां पर भी चैन से बाकी जानवरों को भी वो चैन से नहीं रहने दे रहा। ओके, so grandfather who had to leave Dehradun next day to collect his pension in Saharanpur, तो अब ग्रैंडफादर को अगले दिन पेंशन कलेक्ट करने सहारनपुर जाना था, हो सकता है कोई ग्रैंडफादर किसी गवर्नमेंट सर्विस में हो, डिसाइडेड टू टेक हिम, उसको बंदर को ले जाने की उन्होंने डिसाइड किया। अनफॉर्चुनेटली आई कुड नॉट accompany grandfather on that, अनफॉर्चुनेटली मींस अनलकी, मैं ग्रैंडफादर के साथ में, उनके साथ में, क्योंकि बच्चे जो होते हैं अपने ग्रैंडफादर के करीब रहते हैं, ठीक है, तो ऑथर भी करीब रहा करता था, तो यहाँ पे बता रहा है हमें कि एक्चुअली ही कुड नॉट accompany due to some reason, ठीक है, बट ही टोल्ड मी दैट आफ्टरवर्ड्स, वो बताते हैं उसकी कहानी, जब वो लौट के आते हैं तो उसको बताते हैं उनके साथ में क्या हुआ। ए बिग ब्लैक कैनवस की बैग वाज प्रोवाइडेड फॉर टोटो, अब बंदर कोई छोटी गिलहरी और वो तो था नहीं जिसको आप छोटे से बैग में लेके चले जाएंगे, बड़ा सा कैनवस का बैग इकट्ठा किया जाता है उसको ले जाने के लिए। दिस विद सम
some straw at the bottom, straw means सूखी घास, became his new abode, अब वो एक नया घर उसका बन गया, वो means place where something is kept. When the bag was closed, bag को जब बंद किया गया, there was no escape, कोई बचने की जगह नहीं थी. Toto could not get his hands through the opening and the canvas was too strong for him to bite his way through. जो बैग था वो इतना स्ट्रॉन्ग था कि टोटो जो था उसको काट नहीं सकता था. His efforts to get out only had the effect of making the bag roll on the floor or occasionally jump into the air. अब क्योंकि बंद कर दिया गया था, ट्रेन में जाना था, देहरादून वो लोग रहते थे शायद नैनीताल में, और उनको देहरादून जाना था तो वो ट्रेन से जा रहे थे, ऐसा यहाँ कहानी में लिखा है. तो अब वो कोशिश करता है कूदने की, जब अब बैग में बंद है तो जाहिर सी बात है कि चहलकदमी करेगा और कूदने की कोशिश करेगा, तो वो बैग इधर से उधर पलट जाएगा. An exhibition that attracted a curious crowd of onlookers on the Dehradun railway platform. देहरादून प्लेटफॉर्म पे जब उसके दादाजी उसको लेके जाते हैं तो सारे लोग देख रहे हैं, भाई बोरा ये सामान है, क्यों अपने आप ही बोरा इधर से उधर पलट जा रहा है, क्या बात क्या है. बट किसी को पता नहीं था ना कि उसमें बंदर को आप जानवर को ट्रेन में नहीं ले जा सकते. यू हैव टू कीप एनिमल, यू पेट एनिमल्स इन द गार्ड केबिन, गार्ड के केबिन में आप उसको ले जा सकते हैं. ये ऐसा आरटी रूल है. आप अपने कुत्ते को अगर ले जाना चाहते हैं तो यू मस्ट हैव टाइड इट अराउंड इट्स नेक, आप उसका नाम लिखेंगे, आप अपना वो है उसका फीस चार्ज करेंगे और उसको आप गार्ड के पास बैठाएं अपने साथ केबिन में. हाँ, फर्स्ट क्लास में जा रहे हैं, यहाँ पे केबिन होता है, वहां पर आप अपने साथ ले सकते हैं, नो प्रॉब्लम. बट दैट योर पेट शुड नॉट हर्ट एनीवन. आपका जो पेट है, चाहे वो कुत्ता हो, बिल्ली हो, एक्सवाइजेड कुछ भी हो, तो किसी पैसेंजर्स को हर्ट नहीं करना चाहिए. तो इसी चीज से बचने के लिए ग्रैंडफादर ने उसको बोरे में बांध के रखा था. और देखिए क्या कहानी में आप देखेंगे, वो आगे वो फाइन भी देते हैं, वो कलाकारी वहां पे कर देता है. Toto remained in the bag as far as Saharanpur, but while grandfather was following his ticket at the railway turnstile, Toto suddenly poked his head out of the bag and gave the ticket collector a white grin. तो अब जैसे ही वो सहारनपुर पहुंच रहे होते हैं, बट भाई ग्रैंडफादर जो अपनी टिकट दिखाते हैं वहां पर टीटी को, टोटो जो है अपना हेड उस बैग से किसी तरह बाहर निकालकर अपने दांत जो है दिखाता है. The poor man was taken aback, but with great presence of mind and much to grandfather's annoyance, he said, "Sir, you have a dog with you." अब वो जानबूझ के उसको अवॉइड करना चाहते हैं, सर आपके साथ कुत्ता है क्या? You will have to pay for it accordingly. आपको उसके, अब वो ग्रैंडफादर को चाह रहे थे कि किसी को पता ना चले मुझे इसका फीस ना, मतलब फीस कह रहा हूँ, सॉरी, इसकी टिकट ना देनी पड़े. तो अब वो जो टीटी होता है वो जानबूझ के पूछता है, वो भी अनजान बन जाता है, समझता है ये बंदा, लेकिन होता है ये आपके साथ कुत्ता रहेगा, आपने आपको उसकी टिकट देनी पड़ेगी, आपको पैसे देने पड़ेंगे. इन वेन डिड ग्रैंडफादर टेक टोटो आउट ऑफ द बैग. अब जब मालूम बात खुली गई होती है तो ग्रैंडफादर बोलते हैं ठीक, उसको बैग से बाहर निकालते हैं. इन वेन डिड ही ट्राई टू प्रूव दैट ए मंकी डिड नॉट क्वालीफाई एज डॉग. वो प्रूव करना चाहते हैं कि मंकी जो है वो कुत्ता, कुत्ते को आप साथ में ले सकते हैं, ठीक है. और इवन एज ए क्वाड्रप्ट, या वो क्वाड्रप्ट मींस होता है ये फोर लेग जानवर, चार लेग के जानवर को इंग्लिश में लिखा हुआ है QUADRUT. क्वाड्रप्ट मींस चार पैरों वालों को क्वाड्रप्ट कहते हैं. ये जैसे क्वाड्रिलेटरल होता है ना, इसमें क्वाड्रिलेटरल जिसके चार साइड्स होते हैं, ठीक है, उसी तरीके से इसको क्वाड्रप्ट चार पैरों वाले जानवर कहते हैं. टोटो वाज क्लासिफाइड एज ए डॉग बाय द टिकट कलेक्टर. टिकट कलेक्टर जो होता है उसको डॉग कहता है. एंड 3 rupees वाज द सम हैंडेड ओवर कवर एट हिज फेयर. और 3 रुपए वो चार्जेस कर देता है, पैसे दे देता है फेयर का. ग्रैंडफादर को टिकट लेनी होती है. Then grandfather just to get his own bag took from his pocket our pet Toto bag and said, "What must I pay for this? Since you charge for all animals." तो ग्रैंडफादर पूछते हैं कि बताइए आप सारे जानवरों को चार्ज करते हैं तो मुझे इसके लिए क्या चार्ज करना चाहिए, क्या देना चाहिए. The ticket collector looked closely at the Toto eyes, prodded it with a forefinger, gave his grandfather a pleased and triumphant look and said, "No charge, it's not a dog." तो टिकट कलेक्टर बोलता है कि कुत्ता नहीं है, मैं इसको नहीं पैसा नहीं चार्ज करूँगा. सो नेक्स्ट, रेडी द नेक्स्ट क्लास.